बनाते हुए कहाँ पता चलता है टॉक्सिक बनाएंगे ये गाना में। हम तो अभी भी नहीं मानते ना टॉक्सिक, हम तो मानते हैं कुछ नहीं मानते। मैं रणबीर कपूर का बहुत बुरा वाला फैन हूँ। बुरा हाँ मतलब बर्बाद टाइप का। अच्छा अच्छा हाँ, मैं ना दूसरे फिल्मों के गाने लगाता था जिसमें कि विजुअल रणवीर का है और अपने गाने प्ले करता था कि कैसा लगेगा। जी लवली यार। क्या बात है। जिन्नू पेंदी भूत दी डांग ओनू रेंदा ना कोई होश। भूत मतलब भूतकाल, पास्ट। और अगर हम लोग फिल्म में जाते हैं, रणबीर कपूर को देखते हैं हम लोग वहाँ पे, तो ही इज स्टक इन पास्ट बेसिकली, कि वो एक उसके दिमाग में घर कर चुकी हैं चीज़ें हैं उस कैरेक्टर के दिमाग में, कि वो बेसिकली उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। दिवाली पार्टी थी, दिवाली पार्टी में संदीप सर आए थे, सिद्धार्थ भाई के घर पे दिवाली पार्टी थी। एंड पार्टी में वांगा सर की एंट्री हुई तो हमको लगा यार चलो यार एनिमल के डायरेक्टर आए, मैं वाई फास्ट मी जाके मिलो। एंड मैंने बोला बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, नहीं रहने देते। वांगा सर ने एंट्री लिया एंड ही वाज लाइक कि व्हाट आर यू सिंगिंग। I'll tell you something about Sandeep which very few people know. His Hindi और उसकी knowledge of Hindi films हम सब से यहाँ combined रूप से कहीं ज़्यादा है। मतलब scenes के dialogue ज़्यादा है यार 90s के films के। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. I'm so excited to have this bunch of talented people with me on the show because कहते हैं ना कि इस फिल्म, particularly इस फिल्म का heart and soul is the music, and I have with me the people who have worked on it, the heart and soul. Ladies and gentlemen, the team behind Animals, fantastic, one of the best albums of the year. Woo! बात तो सही है. It is the heart and soul because, and particularly, Mr. Vanga creates his world like that. He really, really values music and original music. I'd like to add. Absolutely. जो कि I think बहुत important. हम बात करने वाले हैं उस पे of course. But शुरुआत में मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं debate. Let me just create a little bit of a debate. I asked this question so in an award show to a lot of composers and artists and singers and writers who were coming and chatting with me, and I got very interesting answers. So, by the show of hands, what is truly more important? You cannot say both, okay? Music or lyrics. So, if you're for lyrics, you will have to show of hands, and you will get literally 15 seconds to tell me why you think so. So, do you think lyrics is more important? मुझे बड़े अच्छे आंसर्स मिले तो मैंने सोचा विवाद से शुरू करते हैं, फिर you know personal जाने वाले हैं. तो by the show of hands, why? But you can have an opinion. So is lyrics more important than? यार इन सबके एक्सपीरियंस में हम सबके I can say for all of us it's inseparable we feel, you know. Yeah. We all This is do. a question for the audience. लेकिन It's not a question for the people who create that. Producer is important. just like हमको बोला गया कि producer important है, दोनों important है. So दोनों important you're saying. Like Yes, the, exactly. We are saying inseparable है मतलब not little bit here and there, no? Even in the like if you see वो गन वाला scene, जी बिल्कुल. तो वो उधर सिर्फ म्यूजिक चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट. सो लाइक music हाँ, तो म्यूजिक उसमें म्यूजिक तो म्यूजिक है, और तो lyrics नहीं है सर. उसमें लिरिक्स नहीं है तो लेकिन म्यूजिक इज वर्किंग देयर. जी सर. एंड Some places we So need- you're a BGM person, sir. Yeah. I'm thinking now, sir. अभी मुझे लग रहा है माहौल जम रहा है. Tell me. yeah, while I'm working on the BGM, Yeah. like some places we need only instrumentation. Absolutely, sir. Because the conversation is so intense, so you can't spoil with the lyrics. So in some places, like without dialogue, you should have some lyrics so that it can elevate the scene and emotion. So two is important, like lyrics and also and the music also. instrumental Okay, also. I tried. Yeah. No problem. We will move on from that. कोई problem नहीं. ये एकदम जुटा हुआ टीम है. No problem. Okay. But on that note, Yeah. because you brought up the BGM, I have to say you worked with Sandeep for Arjun Reddy, Kabir Singh. Yeah. And music is a it's like almost a character of a film. Yeah. क्योंकि लोग जो film देखते हैं वो character की तरह देखते हैं, right? For you create music like that with a person who thinks music is that important. Yeah. For a film like this, which is absolutely crazy, violent, but yet passionate, every kind of emotion 10x पे है. How did you prepare yourself for a world like this? While Sandeep sir narrating only, like first we done the background score first, like he narrate the story and the scenes. So we cracked it, like every scene must be the sounding.
first we work on the sound. The Yeah. different sound should be there. Correct. You all first create the sound and then the scenes were shot on that. on that, So yeah. that must be another experience, So right? the sound should be, it's different, something like not a regular pattern, different from other thing like contemporary style. And if you see like Abrak's theme, like the Jamal Kudu, like Correct. villain entry with different Iranian song, Correct. that kind of, if you see some places, like it will be so like different instrumentations. And while killing the Jija killing, no, that beat Yeah. that went viral, no, that one. Yeah. Exactly. Yeah. I was like creating something. I was doing add-on something, but Sandeep sir, no, like, see, my creativity flows like whatever comes, I will be playing. I was doing something, but Sandeep sir holds me. No, this is right, buddy. This is right, man. You catch this. You start with this beat. Correct. So like everything will add on, happens like it's a process. Like example, you saw that whistle thing, no, like we are working on. Correct. That making we release, you know, like, so I was creating one beat, like, so suddenly he got the idea to do that. You add the whistle, but it sounded very well. So it created before only, long back we created, but he forgot the music. But I introduced that while he was carrying the gun to that inside, no, like that College. scene with his sister, no, that made very high that portion, that scene. It elevated very much. But I think fantastic mixing of that. The BGM, I think for that itself. Standing Whoa! That BGM, flawless. I think it's amazing. It's like a whole character in the film. और हम जब violence और BGM की और music की बात कर रहे हैं तो हैवान तो बनता है discuss करना. We'll come to then I'll come to the heartwarming songs, of course. But हैवान again is a song that is absolutely insane. उसको ना ही जस्ट गाना, उसको मतलब जिस तरह से बनाना है, मुझे आपका प्रोसेस बताइए और किस तरह से आपने समझा उस पकड़ा कैसे उस सुर को? बेसिकली जब संदीप सर से मेरी मुलाकात हुई, इसको ब्रीफ उन्होंने दिया, एक छोटा सा प्लॉट बताया एंड ही इज़ वेरी गुड विद ब्रीफिंग. मतलब वो ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट बस छोटा सा उतना सा बताएंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाट ही वांट. मतलब वो आपको ऐसा बना देंगे कि आप उस पे उसी थॉट के आसपास ही रहेंगे कि आज इधर उधर नहीं जाएंगे. तो इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि उन्होंने एक छोटा सा एक प्लॉट बताया. तो जब मैं घर आया, मैंने उनका एक छोटा सा ब्रीफ था कि लिरिकली आशिम आप सिर्फ लिरिक्स लिखो अभी, और लिरिक्स ऐसा लिखो कि जो बहुत डीप मीनिंग हो. और प्लॉट बताया, थोड़ा फाइट सीन है तो उसमें हथियार होने चाहिए बट डीप होना चाहिए एंड ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझ भी नहीं आना चाहिए, कि वो बहुत जल्दी किसी को समझ नहीं आना चाहिए कि ऐसे से इस तरीके से लिखो. तो मैं जब घर गया तो उस तरीके से काम करना शुरू किया उसके ऊपर कि कुछ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, कुछ वर्ड्स वैसे होने चाहिए. आप बोल रहे हो क्या? मैं कैन आई इंटरप्ट एंड रीड बिकॉज़ ये सब समझ में नहीं आना चाहिए. मैंने लिटरली निकाल के लाई और मैं बोलना चाहती हूँ. ओ जिन्नू पहनदी भूत दी डांग, ओनूर रहंदा कोई होश, जिन्नू पहनदी भूत दी डांग, ओनू ना रहंदा कोई होश. यस राइट. बाकी भी ऐसे है पर हम इस पे स्टिक करेंगे. ओके. मुझे इसका एसेंस समझाइए. एग्जैक्टली. सो संदीप सर ने एक इतना प्यारा एक साइकोलॉजिकल पूरा एक कैरेक्टर बनाया है. तो वो ये गाना उसके ऊपर बात कर रहा है. तो ये जो लाइन है बेसिकली जो आपने, जिन्नू पेंदी भूत दी डांग ओनू रेंदा ना कोई होश. भूत मतलब भूतकाल, पास्ट. और अगर हम लोग फिल्म में जाते हैं, रणबीर कपूर को देखते हैं हम लोग वहाँ पे, तो ही इज स्टक इन पास्ट बेसिकली. कि वो एक उसके दिमाग में घर कर चुकी हैं चीज़ें हैं उस कैरेक्टर के दिमाग में, कि वो बेसिकली उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है. इवन 36 इयर्स का हो चुका है वो कैरेक्टर एंड स्टिल ही इज़ इन द पास्ट जोन कि पापा ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया था, मैं पापा के साथ टाइम बिताना चाहता था, इसलिए ही इज़ नाउ इमोशनलेस लाइक लॉट्स ऑफ थिंग, कि वो उसको वो कंट्रोल के बाहर हैं बेसिकली. अगर हम फिल्म भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिन्नू पेंदी भूत दी डांग ओनू रेंदा ना कोई होश, तो जे सोचने कड्डी खुंडी तेरा मिट्टियों मिट्टी ज्ञान. तो बेसिकली मैं आपको पूरा मतलब समझाता हूँ. तो बेसिकली है ना, ओ तेरे मन दा मालिक तू, यू आर योर ओन मास्टर. ओ भाई नू चिमड़े गत, भाई नू चिमड़े गत, भाई नू चिमड़े गत, ते तेरा गत इज लाइक
पास्ट। ओके, मतलब उसी में जकड़े yes, पास्ट ने आपको जकड़ रखा yes. है। Song is like you are your own master and then ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ चिमड़े गत ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ रोश। नक लाइक उसको एक पास्ट चिपक गया है। एक अगर किसी भी इंसान को पास्ट चिपक जाता है और वो इरिटेट रहता है हमेशा, उसके नाक पे गुस्सा रहता है। ਭਾਈ ਨੂੰ चिमड़े गत ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ रोश, ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਭੂਤ ਦੀ ਡਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ कोई होश। यस, कि उसको अगर लाठी पड़ती है भूतकाल की तो उसको कोई होश नहीं रहता है। जे सोचने कड्डी खुंडी तेरा मिट्टी ओ मिट्टी ज्ञान। अगर आपकी सोच, अगर आपका अंदर की चीज़ें ही, आपके जो थॉट्स हैं वो आपको अगर एक वेपन की तरह अगर आपको अंदर से किल कर रहे हैं या मार रहे हैं, वो ऐसी सोच जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर दे रही है अंदर से, तो वो बेसिकली उसको कोई ज्ञान नहीं है कि आप कितना भी नॉलेज ले लिया हो या कितनी सारी चीज़ें सीख ली हो, तो वो इंटेलेक्चुअल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो मिट्टी हो गया है कि अगर वो अंदर से वो हो रहा है तो जिस सोचने कड्डी खुंडी तेरा मिट्टियों मिट्टी ज्ञान, वो टुट जाने ने हड्डो लवो होनी जान। तो हड मतलब पंजाबी में इसको बोलते हैं, लेकिन उसको मेटाफोरिक वे से बोला गया कि आपका बेस ही खत्म हो गया ना। अगर ये सब हो गया, अगर पास्ट आपके ऊपर चिपका रहा, आप बैगेज लेके चलते रहे और वो चीज आपको कहीं ना कहीं अंदर से नुकसान करती रही, तो आपका तो बेस खत्म हो गया। आपका एंड होना ही है मेंटली। सो इन द सॉन्ग यू आर एक्चुअली रिवीलिंग that what is the end of the violence, which is what I wanted to tell the song. Yes. It's beautiful because अब आप गाना सुन रहे हो, we've been all discussing about the film being violent, but this song itself tells you कि आपका नाश ही होना है। True. कि आप इतने stuck हो पास में। Beautifully done, I must say. Like the past, like पहले mentally आपको तकलीफ देता है and then नेक्स्ट स्टेंजा में आपको फिजिकली तकलीफ दे रहा है इस सॉन्ग में। तो पांबड़ करे सलेडा जो है, पांबड़ इज केओस, सलेडा इज जिन। मेरे दादा कहानी बताते होते थे कि जिन एक मेटाफोरिक जिन होता है, भूत होता है जो कोई भी चीज़ का शेप ले सकता है। तो वो थॉट्स आपके अंदर घुसते हैं और आप जो सलेडा है थॉट्स आपके अंदर दिमाग में जब घुसते हैं तो एक केओस मच जाता है एंड यू बिकम्स हैवान। तो इस तरीके से वो ब्यूटिफुल, आई थिंक इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक। राजी आप पे आते हैं क्योंकि आपने, हम लोग फर्रे वर्रे की जोक्स कर रहे थे, बट इट्स एज एन आर्टिस्ट इस दुनिया में इतना ट्रू रहना बहुत मुश्किल है। आप आनंद जी के साथ आपने इंटरव्यू की थी, आनंद जी ने एक बात बोली थी आपके बारे में कि तुम्हारे गाने स्क्रीन प्ले में गद्दों को भरने में काम आते हैं पर एक आइटम की तरह चमक के नहीं आते। करेक्ट? उन्होंने आपको ये बात कही थी बहुत टाइम पहले जब आप शुरुआत करते, और वो आपके जहन में रह गया हमेशा कि यही है, क्योंकि आपने कमाल का एल्बम दिया था जब आपने शुरुआत की थी, पर आपने जो वर्क चुना उसके बाद भी, but I think even the ones that you got also are very very selective and you got very less offers. I'm assuming because आप इस राह पे ही टिके रहे, right? तो मेरी, इसलिए मैंने कहा था एक कोट बोलने वाली हूँ मैं, जो मुझे उसके बारे में बताइए ज़रा, बिकॉज आई थिंक वो प्योरिटी आपने कैरी किया है और इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में प्योरिटी इतना कैरी करना तो बहुत मुश्किल बात है। अब हम एक अवार्ड शो से लौट रहे थे और मुझे नहीं मिला था जी, तो मैंने आनंद जी से पूछा कि यार ये मतलब क्या मिलेगा कि नहीं कुछ। तनु वर्स मनु की बात कर रहा हूँ जी, और वो फिल्म भी टी सीरीज के साथ ही है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुझे जल्दी तो अवार्ड नहीं मिलने वाला। मैंने कहा दोस्तों के दुश्मन हो यार आप। तो कह रहे कि नहीं, तू जो लिखता है ना वो स्क्रीन प्ले जो आप अभी कह रहे थे, स्क्रीन प्ले से इतना चिपक के चलता है कि लोगों को लगता है हाँ ये तो होना ही चाहिए था, ये तो स्क्रीन प्ले का पार्ट है एक। तो वो चमक, वो जो एक शार्प, हाँ वो नहीं, वो आ नहीं पाता लोगों की नज़र में। लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ ये तो होना ही चाहिए था। तो शायद वो एक बात, बट मैं इससे डरा नहीं। मैंने कहा ठीक है, आता वही है तो करेंगे क्या। जब आती हिंदी तो जर्मन में कैसे लिखें। एक बात बताऊँ, जैसे तनु वर्स मनु के भी जो कई सारे गाने उस वक्त लगे थे कि जैसे कितने दफ़े या रंगरेज है या बाद के और एल्बम्स के, उरी के या तुम्बाड के, जो भी वो गाने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हैं आज भी और मुझे इस तरह से पता चलता है कि वो हमें लिखते हैं इंस्टाग्राम पे या मेल पे, यार ये अच्छा लगा। बिल्कुल है। इस फिल्म पे ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वो बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए कि आप एक नहीं यार चलो कुछ हल्का सा लिख देते हैं जिससे कि वो हो जाए,
उसको किए बिना भी गाने लोगों तक पहुँचे और इतना प्यार दिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, सीरियसली। और राइटिंग प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हाँ, मतलब मुझे लगता है कि दरअसल आता हो तो कर लें, जब आदमी खुद नाकाम है, कुछ आता नहीं है और तो करे क्या। राजी ऐसा तो नहीं हो सकता, you're really underselling। अभी शेष से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप सिंगल लिखते हैं कि, मैंने कहा बहुत कम, मैं कोशिश नहीं करता हूँ लिखने। मुझे चाहिए होता है कि किरदार और बाकी चीज़ें और ब्रीफिंग, और इस मामले में बहुत लकी रहा, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले। संदीप सर की बात करूँ मैं, इतने एप्ट हैं वो अपनी ब्रीफिंग में ना, मतलब वो मुझे तो 2 गानों में जितना वो हुआ कि उन्होंने जो बताया वो मेरे काम का था, और उसके बाद वो फ्रीडम की ठीक है आप लिखो जो लिखना है और उसमें से जो बेस्ट है वो हम चुन लेंगे। तो पहले भी मैं या मरहम में या पापा मेरी जान में, सब में ऐसा ही रहा। जी बिल्कुल। कई बार मुझे लगता था कि मुझे लगता था कि संदीप सर क्योंकि मूलतः हिंदी भाषी नहीं है, तेलुगु बोलते हैं, मुझे लगता था कि कई बार इसलिए भी इन्होंने पास कर दिया कि अच्छा ठीक है, और मैं उसमें अपना कैमोफ्लेज करके अपना निकाल दिया। आपको लगता है क्योंकि you work for such a long time, I सब समझते हैं exactly, I think he even if he doesn't understand, he must be going and doing a research and coming on it, right? या वो सब समझते हैं, वो नहीं तो कई बार बोल देते थे कि ये क्या मतलब है इसका। तो आप, मेरी अंग्रेजी ऐसी है कि मुझे लगता था कि मैं अगर अपनी अंग्रेजी में समझाऊं तो ये गाना पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। तो किसी और को बोलेंगे तुम समझाओगे, बट समहाउ वो हो गया, वो एक तालमेल हो गया। जी बिल्कुल। फाउंड इन ट्रांसलेशन। हाँ, नॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जी नहीं बिल्कुल। ऑफ कोर्स सतरंगा, हियर्स द एंटायर टीम बिहाइंड इट, बट there is the song itself was given, I mean because it was released before and stuff like that, and it was also used as a promotional material, it was like that, right? Everybody started talking about it. It must be very interesting for you all to come up with a song like that, and the pressure, because आपको पता है अभी ये romantic track I feel is the most difficult to write because you're competing with all the others around you, है ना? It is. It's true. So we'll tell you one major advantage point that we had, that we've always had, is that Sandeep is a very dear friend of Siddharth and me. So from the point that he conceptualized Animal, he used to discuss a lot with us. Like we were a part of the story ever since. It was born. It was from the germ. Yeah, like COVID के time पे वो phone करके बोलता था, अरे ये scene, we used to debate over it. When he used to come down to Mumbai, we used to travel out and discuss, sit on the scenes. So you know, as like a fellow writer, filmmaker, we had that bond because हमने कबीर के dialogue किए थे, उसकी understanding थी. तो background बहुत था हमारे पास कहानी का. तो वो मैं उसे मानती हूँ कि वो एक advantage ही था. लेकिन सतरंगा इन ऑल ऑनेस्टी एनिमल के लिए नहीं बनाया गया था। ये टीम यहाँ बोल सकती है। हाँ। श्रेयस ने बताइए कहानियाँ तो हमको बहुत पसंद है, बताइए। ये मतलब जब गाना लॉक हुआ उसके 10-15 दिन पहले गाना, आई थिंक 19 सितंबर, माय डैड्स बर्थडे, करेक्ट, मैंने गाना बनाया था एंड किसी ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ बढ़िया राइटिंग वाला मुझे गाना दो। सो ऑब्वियसली हम लोग ने बहुत काम किया साथ में, सिद्धार्थ एंड गरिमा, वी हैव डन फिल्म्स टुगेदर। सो मैंने कॉल किया गरिमा को कि मैंने बोला एक ट्यून आई है, आप लोग कुछ लिख के दो ना। तो बोला भेज हम लिख के देते हैं। तो मैंने स्टूडियो में स्क्रैच ट्यून रिकॉर्ड करी और तारा रारी करके गाया एंड इवेंचुअली जब सेकंड लाइन आई उसमें तारा तेरा एक, मैंने भेजा था तारा दारा, बट द मोमेंट आई सेंड देम द ट्यून दे कॉल्ड मी एंड दे वर रियली हैप्पी कि यार कुछ अच्छा क्रैक करते हैं एंड हम लोग भेजते हैं। तो जब हम गाना कंसेप्चुअलाइज करते हैं तो वो इंसेप्शन के वक्त हमको नहीं पता होता इसका क्या बना रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता कहाँ जाएगा। मतलब बकवास गाना भी बन सकता है या मतलब दिल को छूने वाला भी गाना बन सकता है। कोई इंटेंट नहीं थी, बस हम खुश हो गए कि सुंदर। और हम लोग बहुत इंटरडिपेंडेंट है, अच्छा लिखा है ना, फिर ये मुझे पूछते हैं कि अच्छा मतलब पूछना पड़ता है कि हाँ सही है कि नहीं, फिर अफर्मेशन लेके एंड वो गाना बना। जिस जगह दिया था वहाँ से ये मैसेज आया कि वी लाइक इट बट वी डोंट लव इट एंड यू वांट टू थैंक देम। तो वो ऐसी वो करते करते फिर जिस दिवाली पार्टी थी, दिवाली पार्टी में संदीप सर आए थे, सिद्धार्थ भाई के घर पे दिवाली पार्टी थी एंड पार्टी में मांगा सर की एंट्री हुई तो हमको लगा यार चलो यार एनिमल के डायरेक्टर आए, मैं वाइफ आस्क्ड मी जाके मिलो एंड मैंने बोला बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, नहीं रहने देते, जस्ट यहाँ चिल करते हैं। एंड बालकनी में बैठ के हम लोग चिल कर रहे थे एंड मांगा सर वॉज आउटसाइड। हम लोग ऐसे ही दुखी होके गाना गा रहे हैं, यार अपना गाना रिजेक्ट हो गया टाइप्स।
मैंने गाने लग गया चांद को देखकर बालकनी में बैठ के, तो मांगा सर ने एंट्री लिया एंड ही वाज लाइक कि व्हाट आर यू सिंगिंग, तो सारा बताया हमने इंग्लिश में, जैसे राज सर ने बोला उनसे बेहतर मेरी इंग्लिश है। तो वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ बेहतर मतलब चट्टान बेहतर, हाफ योर हार्ट हाफ माय हार्ट, दैट्स हाउ बिकम फुल मून, वन स्टार योर वन स्टार माइन। क्या संगा संदीप Oh, I think you can just start in Hindi because when you hear आधा तेरा इश्क आधा मेरा और ऐसा वो पूरा चंद्रमा, I think you don't need a language. I don't know how to explain. It's so beautiful. बट पीपल के धागे को इंग्लिश में कहाँ से बनता? You know that tree, burger, मन्नत। But I'll tell you something about Sandeep which very few people know. Is Hindi और उसकी knowledge of Hindi films हम सबसे यहाँ combined group से कहीं ज़्यादा है। उसके scenes के dialogues ज़्यादा हैं यार 90s के films के। And he knows the songs, इसमें ये वाली लाइन आती है ना अगले उसमें, तो हमें तो पता है कि उसे सब समझ में आता है। थोड़ा बहुत शब्द वो यहाँ वहाँ पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, उसका मतलब सबटेक्स्ट बहुत कमाल का पकड़ता है। Right. So that's a great quality that he has, you know, But which a lot of directors here don't have. सिद्धार्थ गरिमा ने बदरंग में सतरंगा है ये इश्क, आई थिंक बहुत मतलब बहुत आपसी वाली बात है, बट उस बहुत नई बात है। बिल्कुल। Like we don't start a song with the word name बदरंग में सतरंगा। I think something new and thanks to you bro। बोलो 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 बोल दो। Thanks to you, bro. Hey man, thanks। But I like the answer. But Shreya, I want to ask something to you. Was it a really good relief to hear someone not asking to recreate something you heard? Because he's very particular in this zone. You've also worked so many years. I think among the very few people who say that इतने सारे एल्बम में एक गाना तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमने पहले सुना है और हम कुछ बनाए। Was it a relief? And this question is actually open to anybody who wants to get in and answer this because जिसको भी अगर थोड़ा बोलना है कि अगर आई थिंक वो रिक्रिएशन का सहारा तब लेना पड़ता है जब आपको पता है कि कुछ और सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस फिल्म में वो जरूरत नहीं थी एंड वो वैसी फिल्में अलग बनती हैं कि जहाँ पे अलग से एक शूट किया जाता है गाना। इस फिल्म में आप देखेंगे कोई भी गाना लिप सिंक नहीं है, सारे मोन्टाजेस हैं, शूट होने के बाद गाने डाले गए हैं। And Sandeep has a very great understanding of music यार। वो सेंस एक डायरेक्टर को होना बहुत जरूरी है जो उनमें है एंड दैट्स व्हाई यू लिसन टू सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स जो गड़े हुए हैं उखाड़ उखाड़ के लेके आए हैं वो। हम रिक्रिएशन से बचते आए हैं, मतलब एटलीस्ट मैं अपने सिद्धांत के लिए तो बोल सकती हूँ कि ऑफ कोर्स हम जिस इंडस्ट्री में हैं आए दिन ये बात होती है कि यार इसका ये उसका वो, सिर्फ गानों में नहीं फिल्मों में भी होती है, बट हम रिक्रिएशन को इतना पसंद नहीं करते हैं और उसके चलते शायद काम थोड़ा अलग तरह का करते हैं, सिलेक्टिव करते हैं, कम करते हैं, पर वो करते हैं जो दिल कहता है। And also I want to mention the mixing engineer Raja Krishnan sir and sound design SFX Sing Cinema Sachin, because of Raj sir, like it should sound in all theaters, like every theater it should sound amazing, no? Yeah. Because Raja Krishnan sir done a fabulous job. Without sleeping, like in one time, like we were like down, everybody like early morning. Yeah. Everybody was sleeping there, like pura night we are working. So like that's how he dedicated. So that's how it's sounding. But मैं कह रही हूँ ना, this was the music is truly, when you say BGM, this was truly a background because everything people have shot looking at, like listening to the music and things have been done around it. That's not usually how films work. Like they show you scenes and they'll say "अच्छा कुछ बना दो इस पे." I mean, I'm just I'm not saying all. I'm just saying that I've chatted with enough to know that that's how it works. So I think that must have been very exciting for all of you all. You're not being told that this is it and you have to only do this. Which wasn't it? It must have been a. It's true. It's a very free process then. Yeah. बिकॉज बाकी तो ये जेनेरिक काफ़ी होता है, बाकी तो स्पेसिफिकली बोलता है कि अरे यार ये अब ये सीन है देख के बना दो गाना, तो फिर गाना भी वैसे ही बनता है। फिर गाना भी भाई राघव, आई रिमेम्बर कि आपको मैं लाइक इनकी तरह आई हैड सीन यू परफॉर्म लाइव एंड यू वर नर्वस बट यू वर एक्साइटेड एंड पावरफुल, you just went for it. So, and I think उसका live version सुन के तो और भी मजा आता है. I think when you listen to the live version of Hua में. And of course, getting Ranbir to do it, I could see the excitement where you're like, I will sing. Now you do lip sync. Yes. I want to go take you back to that moment. Chill कर रहा था because it was too adorable for us, and you truly for you it was your moment. Like it was your, this is it, this is my moment. So I was like कि मैं पहले उनसे बात कर दी कि will you like come up on stage? उन्होंने कहा हाँ आऊँगा ना, मैं कहा because actually आपने ना वो मूवी में लिप सिंक नहीं किया है तो यहाँ पे कर दो. Exactly. उन्होंने कहा ठीक है चल कर करता हूँ.
I made him lip sync this song and one more song from Rockstar. Yeah, because I was there. So that is why it was important for you to do it. So now, do you feel you got Ranbir Kapoor to lip sync? Are you happy now? Yeah, now I'm happy. Now you're happy? Now that's like a checklist. I was like कि भाई आपको करना पड़ेगा because when we were like there for the photo shoot ना तभी बोला था कि मैं कहा भाई आपको lip sync करना पड़ेगा ठीक है भाई. कहीं और आप बोल रहे थे ये बात की जब लिरिक्स लिखा जा रहा है जब कि इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे प्यार इट्स नॉट एट प्योरेस्ट फॉर्म लाइक हाउ द कन्वेंशनल वे में हम देखते हैं क्योंकि वो किसी और से प्यार कर रहा है इट्स बेस्ड ऑन द तृप्ति इज गेटिंग अ लॉट ऑफ लव आल्सो फॉर इट. अगर ओरिजिनल हीरो हीरोइन नहीं होते आपको फिर भी उनको प्यार दिखाना होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है एंड यू वांट टू मेक इट लुक रियल. व्हाट इज गोइंग इन योर हेड? हाउ डज दैट वर्क? Because it became like an epic song, right? Like it was like, oh, this is a romantic. Nobody thinks of it like a song that they're cheating on somebody else. They say it like, oh, it's a love ballad. Yeah, true. So you've managed to do that. तो विशाल ने मुझे बुलाया था इस गाने के लिए. So उसने कहा कि मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी से मिलवाना चाहता हूँ. बहुत देर रात कॉल किया उसने. मैंने कहा चलो ठीक है. मुझे लगा बहाने बना रहा है वो ऐसे ही. तो मैंने कहा चलो. मैंने उसका नहीं पक्का प्रॉमिस आप आइए आप खुश हो जाएंगे. और मैं रणबीर कपूर का बहुत बुरा वाला फैन हूँ. बुरा हाँ मतलब बर्बाद टाइप का. अच्छा हाँ मतलब तो I love it. मुझे but I love when men appreciate men like this. Very few men do it. जब कोई आदमी ऐसे दिल से किसी that is true respect and love. मैं ना दूसरे फिल्मों के गाने लगाता था जिसमें कि विजुअल रणवीर का है और अपने गाने प्ले करता था कि कैसा लगेगा. जी lovely यार. क्या बात है. क्या ये बहुत बार किया है ऐसा. शाहरुख खान के सर के विजुअल पे किया है और इनके ये दो लोग तो पक्का किया है. मैं गया स्टूडियो. मैंने देखा एक जेंटलमैन है वहाँ बैठे हुए. मुझे लगा ये चेहरा देखा हुआ. अच्छा ये तो कबीर सिंह के डायरेक्टर है. मैं मिला उनसे तो उन्होंने ब्रीफ किया मुझे. विशाल ने कुछ तभी ट्यून प्ले किया ऐसे. बोला कि ये धुन अच्छी लग रही है. धुन सच में अच्छी लगी थी हमें भी. ठीक है. उसके बाद मैंने पूछा कि सर ये क्या फिल्म है. तो बोला उन्होंने ब्रीफ क्या नाम है फिल्म का. एनिमल. अच्छा बोले एक्टर कौन है. तो बोला रणबीर कपूर. और संदीप सर ने कहा. मुझे तब तक नहीं पता था कुछ भी. मैंने कहा अच्छा. तब विशाल देख के हंस रहा है कि अच्छा मतलब ये बात हो रही थी कि सच में मतलब रणबीर कपूर की फिल्म हम लोग कर रहे हैं इस तरह से. उसके बाद उन्होंने जितना ब्रीफ किया उसमें मुझे पहले का कुछ पता नहीं है. बाद का कुछ पता नहीं है. मेरे लिए ये एक लव सॉन्ग ही था. बट ये मुझे पता था कि ये कह रही कि मेरे बॉयफ्रेंड का दिल तुम में लगा हुआ है और ये है वो सब कुछ. तो एक डिसेप्टिव वो था. पता था मुझे कि डिसेप्टिव मामला. पर इसके बाद वो वापस आती है नहीं आती है मुझे कुछ नहीं पता. तो मुझे लगा कि ये मेरा मोमेंट है एक लव सॉन्ग इस तरह का करने में. क्योंकि वहाँ पे अगर आप फिल्म में देखोगे तो लाइनें हैं कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ पहली दफ़ा ही मिल के लगा. उसमें एक क्वेश्चन मार्क भी है. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ ये भी है. बट आप जब फिल्म से बाहर आके वो गाना सुनते हो तो आपको नहीं लगता है ऐसा. जी बिल्कुल. तो ये रहा. I think it's wonderful. Or is also the beginning of love, right? Like while there is प्यार में है पागल है सब कमिटेड है. आपका शुरुआत वाला प्यार है जो कि लाइक इन द पहला नशा zones because they're trying to find each other and they're. How did you take the brief? Like how his brief he was like मुझे पता नहीं था तो मेरे लिए वो था. You know. I did not know the visuals at all. I went to sing it for Pritam Da. Pritam Da said there's a song and it's kind of a love song. You just have to it's a very passionate love song. Just make it a little bit grungy. तो मैं कहा ये कैसे होगा. तो बोले कि थोड़ा सा grunge रखो थोड़ा rock feel में गाना है and romantic भी होना चाहिए. तो first time मैंने कहा वो बहुत rock हो गया था. सेकंड टाइम थोड़ा मैंने मिक्स करके बहुत रॉक वो एकदम बहुत ही हार्श हो गया था. Which is your zone also. You play around that. Yeah. तो जो मैंने Spotify पे गया था वो एक्चुअली वही वर्जन तो मैं फर्स्ट गया था. Exactly. देन उसके बाद मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करके कुछ कॉम करके फाइनली फिर सेकंड वाला. बट वो किलर था बाय द वे. I loved that version also. मैंने थर्ड टाइम फिर से डब किया था जब आने वाला था. पर तब तक मैं सब लैंग्वेजेस गा चुका था. तो माय सॉन्ग वाज सो रिहर्स. मैं इतना रिहर्स हो चुका था कि मैंने बहुत पॉलिश गाया है वो. फिर वो संदीप सर ने बोला नहीं ये नहीं चलेगा वो पहले वाला अच्छा तो वो सेकंड वाला डबे रखा. So you were okay with it still? एक्चुअली मैंने उसमें बहुत हरकत करते हैं ना बहुत ज़्यादा
हरकत बात है हम लोग, तो हम लोग लाइव में ऐड किया था वो। नहीं हाँ, तो वो हरकतें बहुत मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मैंने करी थी, तो वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गया था, एंड वो कैरेक्टर जो है वो बहुत रॉ है, तो इसलिए उन्होंने वो रॉ वाला रखा। एज अ म्यूजिशियन मेरे को थोड़ा अच्छा वो लगा था, जो मैंने ज़्यादा उसको पॉलिश किया था, क्योंकि हमें पॉलिश ही अच्छा लगता है, बट सर को पता था कि क्या चलने वाला है स्क्रीन पे। But it worked. To end it on this note, that I think, like I said in the beginning, and I'm going to end it at that note, right? This movie has been a part of the cultural conversation, like pop culture conversation का हिस्सा बन गया है. Some have loved it, some have not. But music, though, nobody can put a point and say that has impacted them. He's like, what did you say? Music में misogyny है. Misogyny है नहीं. Because but that's the beauty of music. But I feel like you all didn't look at it like that, right? Yeah. Like बनाते हुए कहाँ पता चलता है ना टॉक्सिक बनाएंगे ये गाना में। हम तो अभी भी नहीं मानते ना टॉक्सिक, हम तो मानते ही नहीं मानते। that album, the one of the best albums of the year है, and original albums, every song, and that's an achievement. So I'm going to leave it open here to this, as to if you want to add to this, how this is so important, looking at the way the industry is heading. Also, we spoke about original content, we spoke about lyrics having importance, we spoke about the freedom to create something new, which is what you could do with this album. So I'm going to leave it open here if you want to add, saying what more things do musician needs to keep making albums that create and hold the pulse of the nation. बहुत ही लंबा गहरा सवाल है। सवाल ही खत्म नहीं हुआ, मैं सोचता हूँ। But you understood what I'm saying, right? Like, but पता नहीं समझ। I'm saying if see the musicians will always want to push the envelope. I'm sure everyone here. What we need is the support of a director and a producer. That's how we want to end का it. पल्स हम पकड़ के गाना नहीं सोचते कि ये बनाएंगे तो ये पल्स पकड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं सबसे पहले। बिल्कुल एंड अगर वो सपोर्ट है एंड वी हैव द बिगेस्ट लेबल बिहाइंड अस, Yes. the biggest label behind us, तो उनका जो सपोर्ट होता है, I think that is a huge platform for any of the composer, singer और lyric writer, कि वो जिस वे में उस गाने को प्रमोट करते हैं, I think no other agency has that kind of bandwidth to pull it off. Belief that pulls us through. अच्छे गाने तो बहुत बनते हैं, but वो सब एक साथ पैकेज होके जब आते हैं, like a good film, good director, good musicians, जब सब एक साथ आते हैं तब जाके लेजेंडरी एल्बम लाइक एनिमल बनता है। मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह का जो एक राउंड टेबल जैसा मामला है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती एक फिल्म के म्यूजिक को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड नहीं, इसके बात करना है राज भाई, गाइस वो करना है। ये आज का दिन हम चाहे जितना भी थक चुके हैं या जो भी है, बट थैंक्स टू टी सीरीज एंड Sandeep Reddy Vanga sir and Bhushan Kumar sir and everyone. Yes, from all of us. Team T Series. Thank you. Thank you. Thank you. On that note, Thank you once again, and please just stay the way you are. You guys are awesome, and we want to hear so much more from you. Thank you once again. Thank you.